Honorable Speaker, sir, supplementary question. Okay. I would like to ask Honorable Minister Health to you that it is reported that 7 nurses of the Long Sick Hospital has been attached at teams and salaries are drawing from the Longding against Longding. So I would like to ask whether Honorable Minister will immediately send back the 7 nurses to the Longding or post the new nurses to the Longding immediately. A. B. प्राइमरी हेल्थ सेंटर वर्कर करुणा ट्रस्ट के साथ में है। पहले 3 और 2 डॉक्टर था, लेकिन अभी सिंगल डॉक्टर है। एक MBBS वाला भेजा तो वो उसको ज्वाइन नहीं हुआ बोला है। प्लस कामवा नोगनू का भी 2-3 डॉक्टर था, लेकिन अभी सिंगल डॉक्टर है। उसमें भी डॉक्टर देने की कोशिश करने के लिए ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मिनिस्टर साहब को पूछता। स्पीकर सर, ये जो लॉन्ड्रिंग का नर्सेस का बारे में जो बताया है, लास्ट टाइम कोविड का टाइम में वहां से हम लोगों ने नर्स को लेकर के यहाँ में ट्रेनिंग दिया, इसलिए उनको यहाँ रखा गया है। तो लास्ट टाइम स्टूडेंट यूनियन भी वहां से आया था। फिर कुछ लोगों ने बोला भी था कि नहीं, अभी इतना जरूरी नहीं है वहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने जिसको ट्रेनिंग हम यहाँ दे के रखा हुआ है, उसका बदले में उनको दूसरा नर्स देने को हम तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द उसको हम उसका बदले हम दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने बोला कि डॉक्टर्स का कमी का बारे में, तो डॉक्टर कमियां तो है, लेकिन लास्ट टाइम आप देखा होगा हमने ICR रीजन से कैपिटल से कम 44 डॉक्टर्स जो यहाँ जमावड़ा होकर बैठा था, तो CM साहब का आशीर्वाद से उसमें मैंने कहा कि सर इसमें आप थोड़ा आशीर्वाद देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि क्या है कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग करता है तो हम लोगों का ऑनरेबल लोग ही पूरा फिर उसको वापस रिटेन करने के लिए या उसको ट्रांसफर को कैंसिल करने लिखता है। उनका भी मजबूरी होता होगा जरूर, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ ईटानगर में इतना साल से इतना डॉक्टर यहाँ जमावड़ा होकर बैठा था, तो उसको हम लोगों ने निकाला। 44 डॉक्टर्स हम लोगों ने निकाला है। अभी भी डॉक्टर्स का हमने 52 डॉक्टर्स हम लोगों ने जो अपना APCS के थ्रू से पास आउट होकर निकला था, उन लोगों को भी हम लोगों ने दिया, ट्रांसफर किया, पोस्टिंग किया उसको। और 44 डॉक्टर्स जो हमारा टीम से जो निकला है, उनका एक प्रॉब्लम चल रहा है कि वो लोग कभी बोलते हैं कि उन लोग अब रूरल पोस्टिंग नहीं, रूरल पोस्टिंग उनको जाना मैंडेटरी है 1 साल के लिए, तो उसका बारे में थोड़ा उसको हम डिस्कस करके उसको भी हम लोग पोस्टिंग करेंगे। तो डॉक्टर का अभी बहुत जल्द आपको मैं जरूर उसका आपका जहां जहां कमियां है हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू। नंबर 27 थंगवा मंगहम जी। ठीक है, को क्वेश्चन करना पड़ेगा, जवाब तो इससे दिया है। हाँ। Now, Speaker sir, my question is, star question number 27 is regarding the construction of CO office and staff accommodation at Pumau Circle Headquarters. Here, the answer said that chamber 5 room building constructed in 97 and 98 is allotted to school officer, and 3/4 for CO accommodation, and 2 nose type quarter for staff accommodation has been located. So here I would like to inform you that this accommodation, the office was constructed long back in 1997 with the DOTC fund, a small amount of DOTC. That time road communication was also not good. Now also road is not good. So the building have become now unfit for human stay. It is already some 27 years back the building was constructed. That is SP type kind of building, not RCC. So my question is whether the government has any plan to construct the CO office and the staff quarter in the headquarters. But the answer I got is doesn't arise. The question doesn't arise, does not arise. So this is not the satisfactory answer, because as I have informed our House also,
the day that the Pumau Circle headquarters was inaugurated in the 1983, but still now remain unfunctional, non-functional because of the lack of accommodation, because of the lack of office premises and the shortage of staff and communication bottleneck. These are the many reasons that the CO office could not be properly functioned, which is in the border of the insurgency state Nagaland, the disturbing state Nagaland. So it is the duty of the government to see that such a border area circle office is functional. So I would like to know from the Honorable Chief Minister, whether the government has any plan for construction of the office building for circle CO of circle officers and his quarters and the quarters for the staff. Honorable Singh. ऑनरेबल स्पीकर सर, जो ऑनरेबल मेंबर ने जो क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया है, इनफैक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है पुमाव सर्कल में, ये काफ़ी पुराना हो गया है, अराउंड 25-27 ईयर्स जिसे हो गया है। और मेंबर ने जिसे कहा कि वो सब स्ट्रक्चर एसपी टाइप बिल्डिंग ही है। तो इसमें मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहेगा सभी मेंबर्स के लिए कि एज पर गवर्नमेंट जो पॉलिसी नोटिफाइड है डेटेड 31 अगस्त 2006, उस नोटिफिकेशन का मुताबिक जितने भी हमारा डिप्टी कमिश्नर्स है उनको इंटरेस्ट किया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रेजिडेंस ऑफिसेज एंड क्वार्टर्स जहाँ जहाँ कंडीशंस खराब है, रिपेयर मेंटेनेंस या नया कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसको अच्छा से एग्जामिन करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करना होता है। तो अभी यहाँ सप्लीमेंट्री में डिपार्टमेंट की ओर से ये मेंशन किया गया है कि डीसी लोंगडिंग से अगर वहाँ से रिपोर्ट आता है तो उसको हम लोग जरूर आगे बढ़ाएंगे। इनफैक्ट जितने भी अरुणाचल में, अपना अरुणाचल प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है काफ़ी पुराना है। तो लास्ट हमें याद है कि डीसीएम साहब का लास्ट ईयर का बजट में भी हम लोग ने मेंशन किया था कि जितने भी जो नेफा टाइम्स का भी काफ़ी सारा बिल्डिंग पड़ा हुआ है उसको भी इन ए फेस मैनर हम लोग नया इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हम लोग का रिप्लेस करेंगे। और इस बार का भी बजट में आउट ऑफ द 4 पिलर्स इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे मेंशन है। तो आपके माध्यम से मैं मेंबर को एश्योरेंस देना चाहेंगे कि कुमाऊं सर्कल का रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर से वहाँ से आने के बाद इसको हम लोग जरूर टेकअप करेंगे।